Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is mathematics for class 10th. Today we are going to study triangles chapter number 6 of your mathematics. In this chapter we will study the different rules, different identities, theorems related to the similar figures but with respect to triangles. To start this chapter, first of all, we will see what is the difference between congruent figures and similar figures. Congruent figures and similar figures. Congruent figures are those two figures, or we can say two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. And similar figures are those figures which have same shape and necessarily not same size. यानी सेम साइज हो भी सकता है, लेकिन अगर ना भी हो लेकिन सेम शेप हो तो हम उनको सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं. But this chapter is related with the triangles, so we had to study similar triangles. तो similar triangles में भी यही है, having same shape and necessarily not same size. Or we can say two triangles are similar if they are, यानी दो triangles similar हैं अगर उनके corresponding angles equal हैं और इनके corresponding sides in the same ratio हैं. For example, I have triangle ABC and triangle DEF. These two triangles are said to be similar if angle A, corresponding angle, that is angle A, is equal to angle D. I have written it here. Angle A is equal to angle D. It's a corresponding angle. These two corresponding angles are equal. And angle B is equal to angle E. Angle C is equal to angle F. It means corresponding angles are equal. Angle E is equal to angle D. Angle B is equal to angle E. Angle C is equal to angle F. And also corresponding sides are in the same ratio. That is, if we divide the corresponding sides of these two triangles, the ratio will be same. That is this side AB divided by DE, yani AB side of the first triangle and DE side of the second triangle. If we divide these two sides, it will be equal to the ratio of the other corresponding sides of these two triangles. That is AC divided by DF. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ AC divided by DF will be equal to BC divided by EF. That is, all the corresponding sides of these two triangles are in the same ratio. इनको हम similar triangles कहेंगे. ये साथ साथ इनको हम कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, लेकिन शर्त है कि corresponding angles equal होनी चाहिए और साथ साथ corresponding sides भी equal होनी चाहिए. तो सिमिलरिटी में ये कायदा नहीं है, बल्कि ये कायदा है कि in the same ratio होना चाहिए. I will write, for example, the numbers here as if it is angle 30 degree, it should be 30 degree. If it is 60 or 80, this should be also 80. And then it remains 80 plus 110, it remains 70. This should be exactly 70. तो ये एक क्राइटेरिया है. दूसरा क्राइटेरिया, if it is 3 for example and it is 6, तो ये इन दोनों का रेशो कितना बन गया? 3 divided by 6, that is 1/2. तो यहाँ अगर ये 4 है तो ये ज़रूर 8 होना चाहिए, because the ratio of these two sides will be also equal to 1 divided by 2, that is 4 divided by 8. And if it is 10 or it is 7, this should be double of this. Then this side should be double of this, because all the other sides are twice the side corresponding sides of these triangles. That is 7, it is 14. तो जब हम रेशो निकालेंगे, it is 3 divided by 6, it is 4 divided by 8, it is 7 divided by 14. तो रेशो हर एक जगह क्या बन गया? It becomes 1/2. That is, all the corresponding sides are in the same ratio. Now let us move. और एक बात वो ये है कि दोनों क्राइटेरिया होनी चाहिए. अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास है तो दोनों क्राइटेरिया जो है कि corresponding angles should be equal and corresponding sides are in the same ratio, ये दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए. अगर एक हो तो एक नहीं हो तो हम इनको सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं कह सकते.
Now let us move to exercise 6.1. It says that fill in the blanks using the correct word given in the brackets. Part number first, it is all circles or congruent similar. दुनिया के तमाम सर्कल जो हैं, अगर मैं सर्कल्स बनाऊँ, दो सर्कल, यहाँ एक सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो इनकी जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू फिगर्स है द सेम शेप बट नॉट सेम साइज। तो ये दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर हर हालत में हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, इसमें सिमिलर आएगा, दैट इज़ ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। पार्ट नंबर 2, ऑल स्क्वायर्स आर, तमाम जो दुनिया के स्क्वायर्स हैं यानी 4 साइडेड इक्वल फिगर्स, यानी टू फिगर whose all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। और एक चूँकि यहाँ जनरलाइजेशन है ऑल स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर बड़ा है, उसकी भी 4 साइड्स इक्वल हैं, हर एक एंगल 90 है लेकिन साइज डिफरेंट है, शेप तो सेम है, तो यहाँ भी सिमिलर टर्म आएगा दूसरे पार्ट में। ऑल स्क्वायर्स कैन बी और सिमिलर बट दे मे बी कॉन्ग्रुएंट और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जनरलाइजेशन है इसलिए सिमिलर ही है। तो तीसरा पार्ट, इट सेज दैट ऑल डाइजेस्ट एंगल्स आर सिमिलर, ऑल डाइजेस्ट एंगल्स आर सिमिलर, ऑल आइसोसेलेस एंगल्स कैन नॉट बी सिमिलर बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें एक क्राइटेरिया खुद ब खुद बराबर आता है, दैट इज़, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें हर एक साइड इक्वल होता है लेकिन हर एक एंगल जो होता है दैट इज़ 60। यहाँ भी ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी साइज इसका बड़ा है लेकिन फिर भी एंगल बराबर हैं, इक्विलेटरल दोनों हैं, तो ये सिमिलर हो सकते हैं लेकिन आइसोसेलेस फिगर सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि आइसोसेलेस फिगर में कोई राइट आइसोसेलेस होगी यानी राइट एंगल भी होगा उसका, कोई एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो उनका शेप भी डिफरेंट सेम नहीं है, तो साइज भी डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है अगर हम लिखेंगे कि all equilateral triangles, all equilateral triangles in any situation or up to any size, they can be similar, all equilateral triangles. Then there is question number 4, two polygons, यानी दो polygons हमारे पास है, many sided figures are the same number of, लेकिन उनके साइड जो हैं number of sides they are equal, that is pentagon, दोनों pentagon है, यानी 5 sided figures, hexagon और दोनों फिगर्स 6 साइड्स के हैं, लेकिन वो क्या है, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डाइजेस्ट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डाइजेस्ट, तो हम कहेंगे टू पॉलीगन्स आर द सेम साइड्स आर सिमिलर इफ़, यानी दो पॉलीगन्स जिनके साइड्स बराबर हैं, नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, वो सिमिलर सिर्फ एक ही सूरत में हो सकते हैं अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो मैंने पहले भी बताया ट्रायंगल्स में। तो इसके जो चौथा पार्ट है इसमें जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल फॉर सिमिलरिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो दूसरी ब्लैंक इसकी है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। Then there is question number 2, give two different examples of pair of, हमें एग्जाम्पल्स देने हैं पेयर ऑफ। तो फर्स्ट जो इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल देनी है। तो सिमिलर फिगर्स में हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, जैसे पहले मैंने लिखा था टू स्क्वायर्स, इनकी साइज जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनकी शेप जो है वो सेम है। तो शेप सेम होने के साथ साथ इनकी जो क्या है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑल आर 90 डिग्री, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज का अगर हम रेशो ढूंढेंगे वो भी बराबर निकलेगा। तो ये इसकी एग्जांपल बन गई। जो इसका दूसरा पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स में मैं लिख सकता हूँ एक रेक्टेंगल लिखूँगा, एक स्क्वायर बनाऊँगा, किसी भी सूरत में ये दो फिगर्स सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप जो अलग होती है, स्क्वायर की शेप अलग होती है। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 3, it says that state
वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों यहाँ कोऑर्डिनेटर्स दिए गए, 4 साइड फिगर्स दी गई हैं, तो हमें बताना है कि जो ये फिगर्स हैं ये सिमिलर है कि नहीं है, और हमें वजह भी बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें दोनों में 4-4 साइड्स हैं, वो तो ठीक था, लेकिन जो अगर हम साइड्स की बात करेंगे, एस पी यानी इसका ये वाला साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ डी ए है, तो ये 1.5 है, इट इज़ 3। तो रेशो ढूंढेंगे हम सबसे पहले पता करने के लिए कि रेशो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सिमिलर है, वो सेम रेशो में है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एस पी डिवाइड बाई डी ए, इट इज़ इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 3। तो दूसरा साइड जो है एस आर डिवाइड बाई डी सी, एस आर डिवाइड बाई डी सी, इट इज़ 1.5 डिवाइड बाई 3। और तीसरा है आर क्यू डिवाइडेड बाई सी बी, वो भी है 1.5 डिवाइड बाई 3। चौथा है पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, इट इज़ आल्सो 1.5 डिवाइड बाई 3। तो जो साइड्स का रेशो है वो सेम है। तो इस सूरत में एक जो शर्त है वो बराबर है, लेकिन दूसरी शर्त कि यहाँ जो एंगल है इट इज़ नॉट 90 डिग्री, बट हियर इट इज़ 90, हियर इट इज़ नॉट 90, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ P is not equal to corresponding angle, that is A. Angle Q is not equal to angle B. Angle R is not equal to angle C. तो हम कहेंगे कि corresponding sides in the same ratio है, लेकिन corresponding angles equal नहीं है। तो वजह हम लिखेंगे because these two figures are not, these two figures are not similar, because corresponding angles are not equal. Angles are not equal, although corresponding sides are in same ratio। यानी सेम रेशो corresponding sides का तो था, लेकिन एंगल्स corresponding जो हैं उनका वो तो इक्वल नहीं थे। तो इस तरह हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आगे थैंक्स।